Hello dear learners, this is Dr. Upasna Sharma and the topic of this video is Piaget's Cognitive Development Theory. Piaget का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत. So let's start with the concept of cognitive development. बौद्धिक या संज्ञानात्मक विकास क्या होता है? It is the growth and development of mental abilities and capacities which helps an individual to adjust his behavior to the ever-changing environmental conditions. बौद्धिक विकास से तात्पर्य बालक की या एक बच्चे की उन सभी मानसिक योग्यताओं और क्षमताओं में वृद्धि से है जिसके परिणाम स्वरूप वो अपने लगातार बदलते हुए एनवायरनमेंट में ठीक प्रकार से एडजस्ट करता है और अपनी बड़ी बड़ी कठिन और जो डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स हैं, सिचुएशंस हैं, उनको सुलझाने में अपनी मेंटल एबिलिटीज़ को पूरी तरह से समर्थ पाता है. ठीक है, तो देर आर सो मेनी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ लाइक सेंसेशन, परसेप्शन, इमेजिनेशन, मेमोरी, रीजनिंग, अंडरस्टैंडिंग, इंटेलिजेंस, जनरलाइजेशन, interpretation, language ability, conceptual ability, problem solving ability, decision making ability. Dear learners, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं. You can write them in Hindi as well as English. All these abilities are interrelated. जितनी भी ये abilities हैं ये एक दूसरे से संबंधित हैं and they never develop in isolation. Cognitive development of an individual at any stage of his development includes overall development of these abilities. So, the term cognitive development refers to the process of growth and change in all these mental abilities. Dear learners, cognitive development is a field of study in neuroscience and psychology, and it focuses on a child's development in terms of information processing, conceptual resources, perceptual skill, language learning, and some other aspects of brain development. It also includes the acquisition and consolidation of knowledge. Students' cognitive development is the construction of thought processes, including remembering, problem solving, decision making, all these processes from childhood through adolescence to adulthood. It refers to how a person perceives, thinks, and gains understanding of his or her world through the interaction of genetic and learned factors. कहने का मतलब है कि संज्ञानात्मक विकास में बाल्यावस्था से लेकर एडल्टहुड तक जितने भी हमारे थॉट प्रोसेसेस हैं, चाहे वो कुछ किसी चीज़ को स्मरण करना है, चाहे फिर समस्या का समाधान करना है या फिर निर्णय लेने की क्षमता है, ये सब हमारे संज्ञानात्मक विकास के अंदर ही आते हैं. स्टूडेंट्स, जीन पियाजे, अ स्विस साइकोलॉजिस्ट, एनालाइज्ड ह्यूमन मेंटल डेवलपमेंट इन द फॉर्म ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट. फॉर हिम कॉग्निटिव डेवलपमेंट was concept formation, and according to him, children used to construct knowledge themselves as a result of their interaction with the new objects and experiences. तो इस वीडियो में हम ज़्यादा डिटेल में कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी पढ़ेंगे जो हमें जीन पियाजे ने दी थी. एंड जीन पियाजे वॉज अ स्विस साइकोलॉजिस्ट and he was one of the most influential researchers in the area of developmental psychology during the 20th century. And he was the first psychologist to make a systematic study of cognitive development. Piaget was born in Switzerland in the late 1800s and was 11 years old when his first scientific paper was published. His early exposure to the intellectual development of children came when he worked as an assistant to Alfred Binet and Theodore Simon as they worked to standardize their famous IQ test. Much of Piaget's interest in cognitive development of children was inspired by his observations of his own nephew and daughter. These observations reinforced his budding hypothesis that children's minds were not merely smaller versions of adult minds. Piaget was the one of the first to identify that the way that children think is different from the way adults think.
पियाजे का ये मानना था कि जो बच्चे होते हैं उनका थिंकिंग पैटर्न बड़ों से अलग होता है, वो बड़ों से अलग तरीके से सोचते हैं। डियर लर्नर्स, आप कई बार कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं या जैसे टेट का एग्जाम देते हैं, तो उसमें बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पियाजे कहाँ का साइकोलॉजिस्ट था। सो ही वॉज अ स्विस साइकोलॉजिस्ट, ऑलराइट। ही वॉज बोर्न इन स्विट्जरलैंड। Jean Piaget was mainly interested in the biological influences on how we come to know, कि हम चीज़ों को कैसे जानते हैं। He believed that what distinguishes human beings from other animals is our ability to do abstract symbolic reasoning. According to Piaget, children are born with a very basic mental structure on which all subsequent learning and knowledge is based. तो उसने अपने ही बच्चों को बहुत डिटेल में स्टडी किया। पियाजे की रुचि यह जानने में थी कि बालकों में बुद्धि का विकास किस ढंग से होता है, इसलिए उसने अपने स्वयं के बच्चों को ही अपनी खोज का विषय बनाया। सो ही propounded a theory called as Piaget's cognitive development theory, पियाजे का मानसिक या संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। He was of the view that knowledge comes from actions, कि कोई भी बच्चा अपने जन्म के साथ कुछ बेसिक इंस्टिंक्ट्स और रिफ्लेक्स एक्शन के साथ पैदा होता है। A child takes birth with some basic instincts and reflex actions like sucking, looking, grasping, reaching, gripping, etc. और जन्म के टाइम जब बच्चा पैदा होता है तो उसके पास बौद्धिक संरचना के रूप में सिर्फ इसी प्रकार की कुछ क्रियाएं करने की एबिलिटी होती है। वो सिर्फ इधर उधर देखना, चीज़ों को ग्रास्प करना, ग्रिप करना, दूध पीने के लिए सक करना, ये सब क्रियाएं ही उसको आती हैं आफ्टर बर्थ। फिर धीरे धीरे विद एज, एज अ चाइल्ड ग्रोज, हिज और हर कॉग्निटिव एबिलिटीज और एक्टिविटीज ऑल्सो ग्रोज। डियर लर्नर्स, लुक एट द स्क्रीन केयरफुली। पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को मैंने दो चीज़ों में डिवाइड किया है, एक स्टेजेस और एक कॉग्निटिव प्रोसेसेस। पहले हम कॉग्निटिव प्रोसेसेस को डिस्कस करेंगे। कॉग्निटिव प्रोसेसेस को हम कुछ की वर्ड्स भी कह सकते हैं या की कॉन्सेप्ट्स भी कह सकते हैं। पियाजे हैज़ गिवन अस सम की कॉन्सेप्ट्स लाइक स्कीमा, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, इक्विलिब्रियम। स्कीम, एसिमिलेशन आत्मसातकरण, एकोमोडेशन समंजन, इक्विलिब्रियम संतुलन। सो लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। What is schema? Schema are the basic cognitive structures, or we can say as the building blocks of knowledge. Knowledge in parts या फिर organizational pattern of behavior. A child interacts with environment and develops knowledge or schemas. हम कह सकते हैं कि एक बालक के द्वारा समस्या समाधान के लिए किए गए चिंतन का अभिव्यक्त रूप, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ थिंकिंग। जैसे कि एक बच्चा किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़ता है, वो दिमाग में एक स्कीम बनाता है कि हाउ टू होल्ड एन ऑब्जेक्ट, वो उसका स्कीमा है, ठीक है। सेट ऑफ लिंक्ड मेंटल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द वर्ल्ड विच अ चाइल्ड यूजेस बोथ टू अंडरस्टैंड एंड टू रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशंस। तो स्कीमा जो होते हैं वो ऐसी कैटेगरीज हैं नॉलेज की जो एक बच्चे को हेल्प करती है किसी भी चीज़ को समझने में या फिर इंटरप्रेट करने में। उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट जो की कॉन्सेप्ट है दैट इज एसिमिलेशन, आत्मसातकरण। व्हेन अ चाइल्ड यूजेस अ स्कीम ऑन अ न्यू ऑब्जेक्ट सच एज बाइटिंग, ग्रास्पिंग, बैंगिंग, पुराने अनुभव का नई वस्तु पर प्रयोग करना, पहले से सीखी हुई योजनाओं का प्रयोग करना। बट देयर शुड बी रिजेम्बलेंस। अगर दो वस्तुओं में, दो चीज़ों में रिजेम्बलेंस होगी तभी बच्चा नॉलेज को एसिमिलेट करता है, अपने स्कीमा को एसिमिलेट करता है। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज एकोमोडेशन, समंजन। समंजन, एकोमोडेशन मीन्स चेंजिंग ऑफ एन एग्जिस्टिंग स्कीम टू फिट न्यू ऑब्जेक्ट्स। इफ अ चाइल्ड इज गिवन अ ग्लास बॉटल एंड ऑन बैंगिंग इट ऑन द फ्लोर, on hearing the loud sound,
इट विल लेट हिम चेंज द स्कीम। अगर हम बच्चे को एक बॉटल देते हैं तो उसके दिमाग में जैसे एक दूध की बॉटल का एक स्कीमा बना हुआ है, बट जब वो किसी बड़ी बॉटल को अपनी दूध की बॉटल समझ के पकड़ता है और वो जोर से गिरती है तो वो अपनी स्कीम को चेंज करने की फिर कोशिश करता है। दैट इज कॉल्ड एज एकोमोडेशन। एसिमिलेशन हुआ व्हेन चाइल्ड यूजेस अ स्कीम ऑन अ न्यू ऑब्जेक्ट, एंड एकोमोडेशन क्या हुआ? चेंजिंग ऑफ एन एग्जिस्टिंग स्कीम टू फिट न्यू ऑब्जेक्ट। डियर लर्नर्स, ये जो एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन है, दीज आर द टू एस्पेक्ट्स ऑफ अडेप्टेशन which is also known as learning. For accommodation, we take old habits and try to apply them to new situations. With assimilation, we take new habits and try to make them so they apply to our old ones. Let me make it more clear to you. आपको स्क्रीन पे दिख रहा है keywords and some pictures. जैसे आप देख सकते हैं इसमें एक बच्चा है और कैट है. Boy has learned schema of cat. बच्चे को ये पता है कि ये कैट है. Next time, this boy saws a cub and calls it cat. But उसकी सिस्टर उसे कहती है कि no, it is not a cat, it's a cub. तो ये उसने क्या किया? जो उसका स्कीमा था, कैट को उसने कब को देख के उसको क्या कहा? कैट, क्योंकि वो उसके दिमाग में कैट का स्कीमा बना हुआ था, कैट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी, तो उसने कब को भी कैट कहा। बट जब उसकी सिस्टर ने उसे कहा कि इट इज नॉट अ कैट, इट्स अ कब, सो बच्चा क्या कर रहा है? ही इज अकोमोडेटिंग हिज स्कीमा, मतलब ही अकोमोडेट्स अ न्यू स्कीमा ऑफ कब। कैट का उसको नॉलेज हो गई, उसके बाद अब उसकी जो स्कीमा है उसमें एक और इंफॉर्मेशन ऐड ऑन होगी, दैट इज अकोमोडेशन। एक और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। इस पिक्चर में देखिए, देयर इज अ बॉय सॉ एन एरोप्लेन एंड फ्रॉम एग्जिस्टिंग स्कीमा ही कॉल्ड इट अ बर्ड। बच्चे को बर्ड के बारे में नॉलेज है, उसके दिमाग में बर्ड का एक स्कीमा है, बट जब वो उड़ते हुए एरोप्लेन को देखता है तो वो उसको भी बर्ड समझता है। ठीक है, वो अपना जो स्कीमा है, इंफॉर्मेशन है, वो उसको यूज कर रहा है किसी नए ऑब्जेक्ट पे। हमने कहा है ना कि एसिमिलेशन इज व्हेन अ चाइल्ड यूजेस अ स्कीमा ऑन अ न्यू ऑब्जेक्ट। तो उसने अपने बर्ड वाले स्कीमा को अप्लाई किया है एक नए ऑब्जेक्ट पे, एरोप्लेन पे। नाउ उसकी मदर उसको बताती है इट्स एन एरोप्लेन एंड पीपल ट्रेवल इन इट एंड इट्स अ नॉन लिविंग थिंग। अब क्या हो रहा है? विद द हेल्प ऑफ न्यू स्कीमा, नाउ बॉय केम टू नो द डिफरेंस ऑफ बर्ड एंड एयरप्लेन एंड नाउ ही कैन करेक्टली रिकॉग्नाइज इट। दिस इज कॉल्ड accommodation. I hope it is clear to you. Changing of an existing schema to fit new objects. This is called as accommodation. तो पहले assimilation हुआ, बच्चे ने एग्जिस्टिंग स्कीमा को अप्लाई किया, बट जब उसकी मदर ने कहा कि ये एक बर्ड नहीं है, ये एक एरोप्लेन है, तो फिर बच्चे ने एक और स्कीमा एड ऑन किया, एक नया स्कीमा डेवलप किया, दैट इज एरोप्लेन। तो उसने अब वो नेक्स्ट टाइम क्या करेगा? बर्ड एंड एयरप्लेन को डिफरेंशिएट कर पाएगा, एरोप्लेन को पहचान पाएगा। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्लियर है। नाउ द फोर्थ की कॉन्सेप्ट, दैट इज इक्विलिब्रियम, संतुलन। इक्विलिब्रियम गिव्स द चिल्ड्रन opportunity to grow and develop. When by existing scheme the new situation is not fully handled, the child tries to develop new scheme. This is called equilibrium, the process of restoring balance. Piaget used to believe that all children try to strike a balance between assimilation and accommodation, which is achieved through equilibrium. As children progress through the stages of cognitive development, it is important to maintain a balance between applying previous knowledge, which is assimilation, and changing behavior to account for new knowledge, that is accommodation. So, equilibrium helps in explaining how children are able to move from one stage of thought into the next. कहने का मतलब है कि equilibrium क्या है? Assimilation and accommodation के बीच का बैलेंस। Assimilation में जब बच्चे को
बच्चा अपने पुराने अनुभव को, पुरानी नॉलेज को अप्लाई करने की कोशिश करता है किसी नई चीज़ पे, और जब कोई उसकी इंफॉर्मेशन में कुछ ऐड ऑन करता है, जैसे कि अभी हमने ये एरोप्लेन वाले एग्जांपल में देखा कि बच्चे ने अपने एरोप्लेन बर्ड वाला स्कीमा एरोप्लेन पे लगाया, बट उसकी मदर ने जब उसको बताया कि इट इज़ नॉट अ बर्ड, इट इज़ एन एरोप्लेन, तो उसने उसको एकोमोडेट किया उस नॉलेज को। तो एसिमिलेशन जब से लेकर एकोमोडेशन तक पहुंचने की जो बीच का प्रोसेस है, दैट इज इक्विलिब्रियम, दोनों के बीच का बैलेंस, ठीक है, प्रीवियस नॉलेज और चेंजिंग बिहेवियर के बीच का बैलेंस, दैट इज इक्विलिब्रियम. So I hope all these key points are clear to you. Now we are moving towards Piaget's developmental stages. Dear students, Piaget ने हमें 4 डेवलपमेंटल स्टेजेस बताई हैं कि जब बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है तो वो 4 स्टेजेस में उसने एक्सप्लेन की है कि कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं किस स्टेज पर. देयर आर 4 डेवलपमेंटल स्टेजेस. नंबर 1, सेंसरी मोटर स्टेज, इंद्रिय जनित गामक अवस्था. सेकेंड, प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था. थर्ड, concrete operational stage, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था. एंड फोर्थ इज formal operational stage, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था. Let's discuss them one by one. First is sensory motor stage. Sensory motor stage, it starts from birth to 19 months, मतलब जन्म से लगभग 2 वर्ष तक जो स्टेज है उसका नाम है सेंसरी मोटर स्टेज. इस स्टेज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, like a child creates his own individual world connected with satisfaction of his physical wants. A child uses motor activities and a child begins to develop object permanence. He believes that object only exists if he or she can actually see it. All the activities of child are controlled by sense organs. डियर लर्नर, जो सेंसरी मोटर स्टेज है इसमें कुछ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं. अकॉर्डिंग टू पियाजे, चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू 2 years of age obtain primary experience by their senses. So he termed this stage as sensory motor stage. पियाजे को लगता था कि बच्चे 0 से 2 साल तक जो भी चीज़ें समझते हैं या जो भी एक्सपीरियंसेस लेते हैं वो सेंस ऑर्गन्स के थ्रू लेते हैं, इसलिए उसने इस स्टेज को सेंसरी मोटर स्टेज का नाम दिया. सेंसरी मोटर स्टेज में क्या होता है कि अ चाइल्ड बिगिंस टू इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट और ही और शी अंडरस्टैंड्स द वर्ल्ड थ्रू सेंसेस एंड एक्शंस. इस स्टेज में क्या होता है कि जितने भी इन्फेंट्स हैं, टॉडलर्स हैं, दे एक्वायर नॉलेज थ्रू सेंसरी एक्सपीरियंसेस एंड बाय मैनिपुलेटिंग ऑब्जेक्ट्स. Dear learners, it is a stage of reflex actions, primary circular responses, and at this stage, child touches objects and moves them here and there, and a child starts to imitate others' actions. He or she learns schemas and start to generalize them, and a child also learns the qualities of an object by trial and error. Trial and error भी इसकी एक खासियत है इस स्टेज की. सो जो मेजर आप इसमें नोट कर सकते हैं इस स्टेज की जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें सबसे ज़रूरी क्या है कि जो चाइल्ड होता है ही क्रिएट्स हिज और हर ओन इंडिविजुअल वर्ल्ड और दे यूज़ मोटर एक्टिविटीज़. ऑल द चिल्ड्रन यूज़ मोटर एक्टिविटीज़ and they starts developing object permanence. Object permanence is a very important characteristic of this stage. Object permanence का मतलब होता है वस्तु का स्थायी अस्तित्व, कि कोई भी ऑब्जेक्ट तभी एग्जिस्ट कर रहा है अगर वो उसको देख पा रहे हैं. तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सेंसरी मोटर स्टेज की. उसके बाद आती है सेकेंड स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, 18 months to 7 years. प्री ऑपरेशनल स्टेज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? सबसे पहले जो एक बच्चा होता है, अ चाइल्ड डेवलप्स वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग इवेंट्स एंड ऑब्जेक्ट्स थ्रू सिंबल्स. लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑल्सो स्टार्ट्स टेकिंग प्लेस एंड अ चाइल्ड रिमेन्स ईगोसेंट्रिक.
concept formation starts at this stage and मतलब जो बच्चे होते हैं इस एज के, दे स्टार्ट बिलीविंग दैट वर्ल्ड इज अराउंड देम, संसार में जो कुछ भी है उनके लिए है। वो ईगोसेंट्रिक हो जाते हैं, यानी कि आत्म केंद्रित हो जाते हैं। एक बच्चा सेल्फ सेंटर्ड होता है और अ चाइल्ड लर्न्स थिंग्स थ्रू सिग्नल्स एंड सिंबल्स। तो आप इसमें कुछ पॉइंट लिख सकते हैं, जैसे कि संकेत और चिन्हों का यूज करना, अलग अलग चीज़ों को पहचानना, भाषा का प्रयोग करना। और इस एज में बच्चा रट के सीखता है, ना कि समझ के। क्रैमिंग करता है बच्चा। अ चाइल्ड लर्न्स बाय इमिटेशन एंड प्ले वे एंड a child thinks that he is right and the entire world surrounds him. Piaget has called it as egocentrism. A child learns a language during this period and he also starts applying thinking and logic, but his thought process is not reasonable and sequential. Pre-operational stage के बाद third stage आती है concrete operational stage, 7 to 11 years. At this stage, child is no longer egocentric. He or she communicates with others and try to compare others' point of view with his or her own thoughts. He or she tries to check his or her ideas and decides what is right. The children of this age or this stage, they try to check and recognize basic attributes of an objects like numbers and weight. Concept formation and discrimination also starts at this age. A child starts to cultivate logic and problem solving capabilities and sequences objects on the basis of their attributes and classify them. Dear learners, बच्चे concrete operational stage में वस्तुओं को पहचानने और उनका वर्गीकरण और विभेदीकरण करने में सक्षम हो जाते हैं। वो वज़न, दूरी, डिस्टेंस यानी कि हाइट, वेट, इन सब मेजर्स को अच्छी तरह से समझने लगते हैं। जो भी सामने कोई वस्तु है या घटना है उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं और चीज़ों को, वस्तुओं को पहचानने में सक्षम हो जाते हैं और उनको आइडेंटिफाई करके उनको डिस्क्रिमिनेट कर पाते हैं और उनको कैटेगराइज भी कर पाते हैं। तो ये सब जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक है ये सब कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर आती हैं। नाउ द फोर्थ स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, 11 से 15 वर्ष। इस स्टेज के जो बच्चे होते हैं उनकी मेंटल फैकल्टीज डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। मेंटल फैकल्टीज ऑफ एन इंडिविजुअल आर मैच्योर्ड. Thought process is also developed as he or she gains age. His or her experiences expands, so problem solving capabilities also expands. According to Piaget, this stage is also known as stage of concept formation. Concept formation continues throughout the life, but the type of concept formation depends upon the education and experiences of the person. कहने का मतलब है कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में चाइल्ड डेवलप्स एबिलिटी ऑफ थिंकिंग एंड रीजनिंग, प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड सिस्टमैटिकली एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटी इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ ट्रायल एंड एरर. सेंसरी मोटर स्टेज में मैंने आपको बताया था कि स्टूडेंट्स ट्रायल एंड एरर भी चाइल्ड ट्रायल एंड एरर यूज़ करता है. बट अब इस स्टेज में क्योंकि बच्चा 11 से 15 वर्ष की एज में आ चुका है तो वो अपनी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को यूज़ करेगा. तो इसकी कुछ एक ये विशेषताएं जो हैं वो है चिंतन का विकास, समस्या समाधान की योग्यता का विकास, अप्रत्यक्ष वस्तुओं और घटनाओं के बारे में तर्क और चिंतन करना और समूह में काम करना, कोलैबोरेटिवली काम करना. सो फाइनल स्टेज ऑफ Piaget's theory involves an increase in logic, the ability to use deductive reasoning and understanding of abstract ideas. तो डियर लर्नर, दिस इज़ ऑल अबाउट ऑल द 4 स्टेजेस. आप स्क्रीन पे जिस तरह का मैंने चार्ट बनाया है एक, आप इस तरह का चार्ट भी बना सकते हैं इन ऑर्डर टू मेमोराइज ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरियस स्टेजेस लाइक सेंसरी मोटर 0 to 2 years, coordination of senses with motor responses, sensory curiosity about the world,
यूज ऑफ लैंग्वेज, कैटलॉगिंग, ऑब्जेक्ट परमानेंस, ये सब सेंसरी मोटर स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. देन प्री ऑपरेशनल स्टेज में आएगा सिंबॉलिक थिंकिंग, यूज ऑफ सिंबल्स, यूज ऑफ प्रॉपर syntax, use of language, imagination, intuition, conservation, complex abstract thought. Then concrete operational stage में आप लिख सकते हैं concepts are attached to concrete situations, टाइम, स्पेस, क्वांटिटी, मेजरमेंट, वो सब बच्चे को समझ में आने लगता है, उसकी नॉलेज को अप्लाई करने शुरू हो जाता है और इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन शुरू हो जाती है. देन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में थियोरेटिकल, हाइपोथेटिकल, काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग हो जाती है स्टूडेंट की, एब्स्ट्रैक्ट, लॉजिक, रीजनिंग, प्लानिंग, एंड कॉन्सेप्ट इज लर्नड इन वन कॉन्टेक्स्ट कैन बी अप्लाइड टू अनदर. तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को आप नोट डाउन कर सकते हैं. आफ्टर दिस द नेक्स्ट टॉपिक इज एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ पियाजेस थ्योरी. पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, उसमें हमने जो 4 की कॉन्सेप्ट्स पढ़े, उसके बाद 4 स्टेजेस पढ़ी, वो एजुकेशन में कैसे यूज हो सकती हैं. सबसे पहले अकॉर्डिंग टू पियाजे, concepts which are related to daily life should be taught to the students. Secondly, teaching aids should be used like models, charts. Child learns by himself or herself. So, students should be provided with a variety of experiences so that they can explore, experiment and learn. And tasks should be given to the students of different levels so that understanding could be enhanced in less mature students. Knowledge should not be imposed on the child. So it is the duty of the school, teachers and parents to provide materials to children to sharpen their interest. Let the child explore and solve the problems. Students should be allowed to manipulate things and see results. The knowledge of various cognitive stages of growth of a child helps the teacher in more than one way. Teacher should be sensitive to understand the child's actions and he or she should guide the students accordingly. As you know, development is a stage-wise process. So we should all go through stage-wise in a sequence from simple to complex. Piaget has also emphasized upon discovery learning, the idea that children learn best through doing and actively exploring. तो हमें स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए और स्कूल करिकुलम में हमें ऐसी एक्टिविटीज़ रखनी चाहिए जिससे बच्चे प्ले वे मेथड से सीखें, लर्निंग बाय डूइंग मेथड से सीखें. एंड देयर शुड बी फ्लेक्सिबिलिटी इन द करिकुलम एज वेल. और हमें स्टूडेंट्स को एज अप्रोप्रिएट मटेरियल या एज अप्रोप्रिएट कॉन्सेप्ट्स ही पढ़ाने चाहिए. चिल्ड्रन शुड नॉट बी टॉट सर्टेन कॉन्सेप्ट्स अंटिल दे हैव रीच्ड द अप्रोप्रिएट स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट. According to Piaget, assimilation and accommodation require an active learner, not a passive one, because problem solving skills जो हैं उनको हम पढ़ा नहीं सकते. They cannot be taught, they must be discovered. तो लर्नर्स, पियाजे का कहना क्या है कि डिस्कवरी लर्निंग मेथड होना चाहिए, करिकुलम हमारा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, हमें स्टूडेंट्स को पहले डेली लाइफ से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पढ़ाने चाहिए, टीचिंग एड्स यूज़ करनी चाहिए, ऐसे टास्क देने चाहिए स्टूडेंट्स को जो उनकी डिफ़िकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग हो या डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस के अकॉर्डिंग हो, और उनको हमें एक्सप्लोर करने के, एक्सपेरिमेंट करने के और लर्न करने के विभिन्न अवसर या फिर अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए. तो डियर लर्नर्स, दिस इज़ ऑल अबाउट पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट. थैंक यू.